The Enchanted Pool. This story is associated with the Mahabharata of Indians. Okay, so there is a very little bit information we have to gain before proceeding and going further to this chapter. It's a very little concept that there was a king named as Pandu. This is an Indian king. Okay, Pandu. He marries and have two wives named as Kunti and Madri, Madri, Madri. Okay, here. So now Kunti were having three kids. Yudhitra, Bhima and Arjuna. Their real name was Yudhitra, Bhim and Arjun. Okay, then Madri was having two kids, her three, and she was having two kids. Her two kids' name were like Nakula and Sahadeva. Okay, so Yudhishthira was truthful, fairness, and wisdom and strength. In this, he believes. And Bhima believes in strength, means Bhima was strengthful, very protective, and everything was by his perspective to family. Arjuna was like supreme archer and strategist and master of warfare and discipline, warfare. Nakula was graceful, beautiful, and sportsmanship he was handling. And Sahadeva was wisdomist, astrologist, and advisor. Okay, this was all total five brothers and the sons of Pandu. Actually, the king Pandu was cursed with someone that he would never have his own genetical child. But the Kunti were boon means divine blessed with the god that she was granted with the three children. Okay, means the god gifted her three children, and using the boon divine bless of Kunti, Madri also get to get means adopted two sons, Nakula and Sahadeva. Okay, let's begin. So now let's begin. Mahabharata is an ancient Indian epic poem about the struggle for powers between two groups of cousins, the Pandavas and Kauravas. Okay, so Pandavas and Kauravas. The Kauravas and Pandavas. So basically, the Pandavas were the kids of the Pandu. Pandu was the father of that particular five sons, and they all five together becomes Pandavas. And Pandu were having a brother of something name I didn't know particularly, and he was having kids, and the kids were 101 kids. They were the brothers. Total 101. Pandavas were 5 and Kauravas were 101. So 101 brothers, a mixture named as Kauravas. At one point in the story, the Pandava princess Lear dies against Kauravas and lose their kingdom. They are sent away in exile for 13 years. In this extract, the Pandavas are nearing to the end, the time of exile. So, due to some reasons, there was a little much fight in between Pandavas and Kauravas, in which Pandavas lose and they have to go to exile in the jungle, kind of jungle, and spend their time 13 years. 13 years of time they have to spend here, and in this story they have completed their 12 years completely. Now 1 year is remaining there, and the story is one of the one day of that particular day, that particular year. So now here the story started. The stipulated period of 12 years was drawing to a close. यहाँ पे उन लोगों ने ऐसा बताया है कि जो 13 साल का उनका टाइम पीरियड था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, क्योंकि 12 ईयर चालू हो चुका था. So now one day a deer was rubbing itself against a poor brahmana in fire kindling mortar. इसका अर्थ है, एक दिन एक हिरण एक गरीब ब्राह्मण के अग्नि जलाने वाले ओखल से खुद को रगड़ रहा था. And as it turned to go, the mortar got entangled
in its horns, and the affricated animal fled widely with into the forest. और जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, ओखल उसके सींगों में उलझ गया और भयभीत जानवर उसे लेकर जंगल में भाग गया. In those days, matches were unknown and fire was kindled with the pieces of wood by mechanical friction. Means at that time they want to say that. Actually overall they want to say that at that time उस समय पर कुछ ऐसे मतलब ये नहीं थे, कुछ ऐसे मैकेनिकल चीज़ें नहीं थी आग जलाने के लिए, मैच स्टिक्स यानी माचिस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, और लकड़ी को काटने के लिए मैकेनिकल फ्रिक्शन भी नहीं हुआ था. Alas, the deer is running away with my fire kindler. How can I perform the fire sacrifice? Shouted the Brahmana and rushed towards the Pandavas for help in his extremity. Here, extremity means a last stage of danger, means very danger. Okay. सो एग्जैक्टली उस समय क्या हो रहा था, फिर वो डियर एकदम उसका फायर किंडलर लेके ब्राह्मण का भाग गया और वो बोलता है अलास, मतलब ओ माय गॉड, दिस डियर इज रनिंग अवे विथ माय फायर किंडलर. अब मैं अपने ये हाउ कैन आई सेक्रीफाइस फायर सेक्रीफाइस मैं कैसे करूँ, ये ब्राह्मणा ने शाउटेडली बोला और एकदम से भागा पांडवास के पास एक उनसे मदद मांगने के लिए. The Pandavas pursued the animal, but it was a magic deer, which sped in a great leaps and bounds, decoying the Pandavas far into the forest and then disappeared. So basically यहाँ पे क्या हुआ, पांडवास ने उस हिरण का पीछा किया, ठीक है, उसके पीछे गया, लेकिन वो एक जादुई डियर था यानी हिरण था. वो बहुत तेज़ी से भागा कि वो इतने तेज़ भागा कि उसने पांडवों को जंगल में ही दूर तक ले आया और खुद तो भाग गया. ठीक है. Worn out by a fertile chest, the Pandavas sat in a great dejection under a banyan tree. थक के हार के व्यर्थ की खोज में ढूंढ कर जब पांडवास थक गए तो एक वो बरगद के पेड़ यानी बनियान ट्री के नीचे उन्होंने अपना रेस्ट किया, थकान मिटाने के लिए वो वहाँ पे थोड़े से विश्राम या आराम करने के लिए बैठ गए. नकुला साइन, अभी नकुला कौन है, तो माद्री का लड़का. नकुला साइट, वी कैन नॉट रेंडर इवन दिस trifling service of the Brahmana. How we have degenerated, said he sadly. तो यहाँ पे नकुला ने कहा कि हम मतलब पांडव मतलब ब्राह्मण ने हमें इतना छोटू सा काम बताया था करने के लिए, इतनी छोटी सी मदद मांगी थी, हम उसका इतना भी काम नहीं कर पाए, है ना. मतलब हम उनके इतने से भी काम नहीं आए, हम उनका इतना छोटा काम तक नहीं कर पाए. ठीक है. देन भीमा सेड, क्वाइट सो, when Draupadi was dragged into the assembly, we should have killed those wretches. Is it not because we did not do so that we have had to suffer all these sorrows? And he looked at Arjuna sadly. अब अभी यहाँ पे भीमा ने क्या बोला ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा. एक्चुअली है ये चीज़ कि पांडवास जो 5 भाई है उन सब ने मिलकर एक ही पत्नी द्रौपदी है, उन सब की एक ही पत्नी है जिसका नाम द्रौपदी है. तो ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें कहा था कि जो भी चीज़ तुम्हारे पास होंगी वो 5 हिस्सों में 5 भाइयों को मिलनी चाहिए. लेकिन मतलब वो तो हो गया था, तो उन सब भाइयों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अगर हमारी माँ ने हमें ये बोला ही है तो क्यों ना हम पत्नी भी एक ही रखें, मतलब पत्नी भी बांट दी गई. ठीक है. तो हुआ क्या था, एक दिन एक कोई तो भी था जिसने द्रौपदी को परेशान किया, उसके साथ गलत चीज़ की और गलत उसको असेंबली में घसीटा, मतलब एक ऐसे खुले मैदान में घसीटा. तो भीमा ने कहा बिल्कुल, जब द्रौपदी को उस असेंबली में घसीटा था
तभी उस टाइम उस दुष्ट लोगों को हमें मार देना चाहिए था। हमने नहीं मारा, क्या उस सब चीज़ों का फल हम अभी भुगत रहे हैं? और फिर उसने अर्जुन की तरफ एकदम उदासी से देखा। Arjuna agreed in a bored silence. The vulgar and insulting brag of the son of the charioteer doing nothing. So we have deservedly fallen into this pitiable state. अर्जुना उसके बात से सहमत होके बोला, एकदम साइलेंस में, जब ये गंदी हरकत घटिया हरकत हमारे सामने हो रही थी, तब मैंने कुछ भी नहीं किया, कि इसी वजह से आज हम इस स्थिति में हैं। ऐसा किसने बोला? ये सब चीज़ें अर्जुना ने बोली। देन युधिष्ठिरा noticed that with sorrow that all of them had lost their cheerfulness and courage. He thought they would be more cheerful with something to do. He was tormented with the thirst, and so he said to Nakula, "Brother, climb that tree and see whether there is any pool or river nearby." तो जो युधिष्ठिरा था उसने ये नोटिस किया कि हमारे सारे उसके जो सारे भाई हैं उसने उनका हौसला खो चुका है। बिल्कुल उनमें चीयरफुलनेस, करेज कुछ भी बचा नहीं था। उसने सोचा कि मैं कुछ करता हूँ, उनमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट ये सब भूल के वो अच्छे मार्ग, अच्छी चीज़ें सोचे, चीयरफुलनेस और करेज उनमें आए। वो सब लोग थर्स्टी थे, उनको प्यास लगी थी। एंड फिर युधिष्ठिरा ने नकुला से कहा कि भाई ये पेड़ है, इसके ऊपर तुम चढ़ो और देखो कि कहीं आसपास तुम्हें कोई पूल या फिर नियर बाय रिवर दिख रही है क्या पानी पीने के लिए। नकुला climbed the tree, looked around and said, "A little distance I see water plants and cranes. There must certainly be water there." उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आसपास वाटर होगा, ठीक है। युधिष्ठिरा sent him to fetch some to drink. उसने उसको भेजा और बोला कि पानी लेके आना उधर जो भी दिख रहा है उधर से, ठीक है। Nakula was glad when he got to the place and saw there was a pool. He was very thirsty himself and so thought to quenching his thirst first before taking water in his quiver for his brother. नकुला एकदम ग्लैड था, मतलब एक बहुत ही उसे था कुछ तो भी, और उसने सोचा कि मतलब उसको फॉर्चुनेटली वहाँ पे नदी मिल गई जिसमें पानी था, ठीक है। और वो खुद ही बहुत ज़्यादा प्यासा था। उसने सोचा कि उनके पास ले जाने से पहले थोड़ा सा पानी मैं पी लूँ और फिर उनको भी दे दूँ, ठीक है। तो उनको देने से पहले उसने सोचा कि मैं खुद ही पी लेता हूँ। एंड सो थॉट ऑफ quenching his thirst first before taking the water his quiver for his brother. But no sooner did he dip his hand in the transparent water than he heard a voice which says, "Do not be rash. This pool belongs to me, O son of Madri. Answer my question and then drink the water." हुआ क्या, जैसे ही उसने उस पूल में, उस नदी में हाथ डाला, उस ट्रांसपेरेंट वाटर थोड़ा सा पार्शियली उसने अपने हाथों में लिया और बस पानी पीने ही वाला था, तब उसको एक आवाज़ सुनाई दी। और वो आवाज़ बोल रही थी कि जल्दी मत करो, ये पूरी नदी मेरी है। ओ हे माद्री के बेटे, मेरे सवाल का जवाब दो और फिर ये पानी पियो, ऐसा उसको आवाज़ आई, ठीक है। Nakula was surprised but carried away by his intense thirst and heedless of the warning, he drank the water. मतलब वो इतना ज़्यादा प्यासा था, पहले तो वो सरप्राइज हो गया कि अरे बाप रे ये कैसे हुआ, लेकिन वो इतना ज़्यादा सरप्राइज था कि बहुत सरप्राइज था वो, लेकिन इतना ज़्यादा प्यासा था कि वो कुछ सोच नहीं पाया। बस उसने सोचा कि मैं इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा, बस मुझे पहले पानी पी के अपनी प्यास को बुझाने दो। उसने वो पानी
वार्निंग सुन के भी इग्नोर करके उसने वो पानी पी लिया. एट वंस ओवरकम बाय इनरिवर्सिबल ड्रॉजीनेस ही फेल डाउन टू ऑल अपीरियंस डेड. उसने पानी पी ही लिया आखिर, ठीक है, ओवरकम कुछ भी हुआ, ठीक है. फिर जैसे ही उसने वो पानी पिया वो ज़मीन पे गिर गया और ऑलमोस्ट पूरा मर ही गया. Surprised that Nakula had not ridden, Yushidhara sent Sahadeva to see what the matter was. बहुत देर तक नकुला नहीं आया तो युधिष्ठिरा ने सहदेवा को बोला कि जाओ नकुला को ढूंढ के लाओ और देखो क्या हुआ है. When the Sahadeva reached the pool and saw his brother lying on the ground, मतलब जब सहदेवा आया उस पूल के पास और उसने देखा अपने भाई को ऐसे लेटा हुआ देखे ग्राउंड पे, ही वंडर्ड वेदर एनी हार्म हैड कम टू हिम. वो सोच में पड़ गया कि इसको क्या हुआ है, क्या इसको कोई तकलीफ है, क्या हुआ है, बस यही सोचने लगा. बट बिफोर लुकिंग इनटू द मैटर फर्दर ही रस्ट इन इरिसिबिलिटी टू द वाटर टू क्वेंक हिज बर्निंग थर्स्ट. लेकिन आगे देखने से पहले कि वह उस मैटर को और डिटेल में और पोस्टमार्टम करके जानने से पहले उसने सोचा कि मेरा कुछ भी करने से पहले उसको इतनी ज़्यादा इंटेंस थर्स्ट थी कि उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा पानी पी लूँ, फिर आगे देखूँ कि और क्या हुआ है और मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है. The voice was heard again. Oh Sahadeva, this is my pool. Answer my question and only then may you quench your thirst. मतलब फिर से उसको सेम आवाज़ है कि ओ सहदेवा, ये मेरा पूल है, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो. Like Nakula, Sahadeva also did not heed the warning. He drank the water at once dropped down. लेकिन प्यास इतनी ज़्यादा थी कि सहदेवा ने भी पानी पी लिया नकुला की तरह ही और फिर से वो गिर गया और मर गया. Puzzled and worried that Sahadeva also did not return, Yudhishthira sent Arjuna to see whether the brothers had met with any danger and bring water, he added, for he was very thirsty. अभी वो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में था और थोड़ा सा घबराया हुआ, वरीड सहदेवा नहीं आया इसलिए युधिष्ठिरा वरीड थोड़ा सा हबड़ाया हुआ था. तो इसलिए उसने अर्जुना को भेजा जहाँ पे ये दोनों गए थे कि तुम इन दोनों को ढूंढ के आओ, क्या मैटर है, कुछ खराबी तो नहीं है, उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है. और उसने ये भी बोला कि आते वक्त पानी लेके आना क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा प्यासा था. अर्जुना वेंट स्विफ्टली, वो भी चला गया धीरे से, ठीक है. He saw both his brother lying dead near the pool. उसने भी देखा कि उसके दोनों भाई मरे पड़े हैं उस पूल के पास. He was shocked at the sight. वो बहुत ज़्यादा शॉक था. That they must have been killed by some lurking foe. उसको उन दोनों को ज़रूर ही किसी ऐसे नोकीले चीज़ से मारा गया होगा या फिर कुछ तो भी हुआ होगा, ऐसा अर्जुना ने सोचा. Though heartbroken with the grief and burning with the desire of revenge, he felt all feelings submerged in a monstrous thirst with irresistibility impelled with the tattle pool. दो उसका दिल टूट चुका था, वो उसके अंदर बर्निंग हो रही थी, उसको बस ऐसा ही लग रहा था कि जिसने भी अपने दोनों भाइयों को मारा है उसको मैं जाके मारूं. ये सारी रिवेंज की बातें चल रही थी, लेकिन ये सब मिक्स्ड होकर भी क्या, तो उसको भी प्यास लगी थी, है ना. अगेन उसको भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो उसने भी ये सोचा कि मैं इस मैटर में गिरने से पहले थोड़ा सा पानी पी लूँ और फिर देखूँ कि मैं इनको ज़िंदा कर सकता हूँ, मैं इनकी कैसे मदद कर सकता हूँ. ये सब जानने से पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ पहले. द सेम अगेन अ वॉइस वॉज हर्ड. Answer my question before you drink the water. This pool is mine. If you disobey me, you will follow your brothers. अभी आवाज़ ऐसी आई थी कि मेरे सवालों का जवाब दो पहले कि तुम ये पानी को पियो. ये सब पूल मेरा है और अगर तुम मेरी नहीं मानोगे तो तुम भी अपने भाइयों के हालात जैसे हो जाओगे. अर्जुना's anger knew no bounds. अर्जुन के
एंगर, उसका गुस्से की कोई सीमा ही नहीं बची थी. ही क्राइड, हु आर यू, कम एंड स्टैंड अप टू मी. तुम कौन हो, मेरे सामने खड़े आओ, एंड आई विल किल यू, और मैं तुम्हें मार दूंगा. एंड ही शॉट नीड एंडेड एरो इन द डायरेक्शन ऑफ द वॉइस. फिर उसने अपना वो होता है ना, वो ऐसे खींच के मारने वाली चीज़, उसको निकाला और जिस डायरेक्शन से, जिस जगह से आवाज़ आ रही थी, उस पर जोर से मारा. द इनविजिबल बीइंग लाफ्ड इन स्कॉन. मतलब द इनविजिबल बीइंग लाफ्ड इन स्कॉन, मतलब वो हंसा, हे हा हा हा, योर आरोज टू बट वाउंड द एयर. मतलब उसने कहा कि हाँ, तुम्हारे एरोज मुझे लगे, लेकिन मुझे नहीं, हवाओं को. मतलब उसने ऐसे कहा कि ये लगा लेकिन मुझे नहीं, एरोज को. मतलब उसको कुछ नहीं लगा, ऐसा उसका ओवरऑल मीनिंग था. फिर उसने फिर से वही कहा, मेरे सवालों का जवाब दो, फिर तुम अपनी थर्स्ट को बुझा सकते हो. इफ़ यू ड्रिंक द वाटर विदाउट डूइंग सो, यू विल डाई. मतलब अगर तुम पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर अपनी प्यास बुझाओ, अगर ऐसा नहीं तो तुम भी मर जाओगे. ग्रेटली वेक्स्ड, अर्जुना मेड अप हिज mind to seek out the grapple, this elusive foe. But first he had to quench the terrible thirst. Yes, thirst was the enemy he must kill first. So he drank the water and also fell down dead. मतलब उसने सोचा कि आज तो मैं इस आवाज़ को ढूंढ के मार ही डालूंगा, पूरा इसकी जान ही ले लूँगा. लेकिन उस वॉइस से भी ज़्यादा, मतलब एक पहला एनिमी तो उसका उसकी प्यास थी, क्योंकि उसकी वजह से उसका कोई भी दिमाग नहीं चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था. उसने सोचा कि भाड़ में जाए सब कुछ, पहले मैं पानी पी लेता हूँ. उसने सेम किया, उसने पानी पिया और अपने भाइयों की तरह ज़मीन पे मर गया. After anxious waiting, Yudhishthira turned to Bhima. Dear brother Arjuna, the great hero has also not returned. Something terrible must be have happened to our brothers, for our stars are bad. मतलब उसने कहा, अब एक ऐसे नर्वसनेस हुई यशोधरा को, और फिर वो भीम के पास गया. प्रिय भाई अर्जुना, जो बहुत ताकतवर है, एक अच्छा हीरो है, वो तक अभी तक वापस नहीं आया. ज़रूर कुछ तो भी बहुत ही खतरनाक हुआ होगा अपने भाइयों के साथ. वैसे भी हमारा आज दिन अच्छा नहीं है. प्लीज़ सीक देम आउट एंड बी क्विक अबाउट इट. उसने कहा, अब तुम जाओ, उनको ढूंढो, लेकिन जल्दी. और हाँ, ऑल्सो ब्रिंग वाटर. और हाँ, पानी भी लाना. फॉर आई डाई ऑफ थर्स्ट, नहीं तो मैं प्यास से ही मर जाऊंगा. भीमा रैक्ड विथ एंग्जाइटी, वो ऐसे घबराते घबराते गया. हरीड अवे विदाउट अ वर्ड, बिना कोई शब्द बोले वो जल्दी जल्दी जाने लगा. His grief and rage can be imagined when he saw three brothers lying there dead. मतलब उसको इतना शौक लगा, वो इतना ज़्यादा सरप्राइज था कि कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता, जब उसके भाइयों को उसने वहाँ पे मरा पड़ा ज़मीन पे लेटा देखा. उसने सोचा, दिस सर्टनली द वर्क ऑफ द यक्षास. आई विल हंट देम डाउन एंड किल देम. सो यक्षा मीन एक नेचर स्पिरिट, मतलब पीछे पुराने ज़माने में मानते थे, ठीक है. उसने कहा कि ये ज़रूर यक्षा ने किया होगा, मैं उनको ढूंढूंगा और उन्हें मार दूंगा. बट ओ, आई एम सो थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ. आई शैल फर्स्ट ड्रिंक वाटर एंड द बेटर टू गो फाइट देम. मैं पहले पानी पी लेता हूँ और फिर उनसे लड़ने जाता हूँ. ड्रिंक ओनली आफ्टर आंसरिंग माई क्वेश्चन. फिर से यही आया, मीन्स उसने बोला कि पहले पानी पी लेता हूँ, फिर लड़ने जाऊँगा. एंड देन डिसेंडेड इनटू पूल, पूल की तरफ झुका, और फिर से एक वॉइस ने बोला, भीमसेना बिवेयर, यू मे ड्रिंक ओनली आफ्टर आंसरिंग माई क्वेश्चन. तुम सिर्फ पानी पी सकते हो मेरे सवालों का जवाब देने के बाद. यू विल डाई इफ़ यू डिसएग्री माई वर्ड्स, तुम मर जाओगे अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना. In defense, and as he had did so, his great strength seemed to slip from like a garment, and he also fell dead among his brothers.
What happened before? He said, who said? Bhim. He said, who are you? Dictate to me. तुम कौन हो मुझे बताने वाली? Cried भीमा. बोला, भीमा ने बोला. एंड उसने वाटर उसको अवॉइड करते हुए पी लिया, ग्राइंड टू द ग्राउंड. एंड वो भी अपने भाइयों की तरह जमीन पे पड़ा मर गया. ठीक है. अलोन युधिष्ठिरा वेल्ट फुल ऑफ एंजाइटी एंड थॉट. अकेला युधिष्ठिरा प्यास से मरा, भाइयों की टेंशन में उसको बुरा लग रहा. हैव दे बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वो किसी के श्राप में पड़ चुके हैं? और दे वेयर or they are wandering about in the forest in search of water, they fainted or died with the thirst. उसने कुछ सोचा, उसको सोचा कि क्या उन पे किसी का श्राप चढ़ चुका है, क्या वो फॉरेस्ट में ही इधर उधर भटक रहे पानी के लिए, या फिर वो प्यास से मर गए. ऐसा उसको लग रहा था युधिष्ठिरा को. इतने सारे थॉट्स उसके दिमाग में एक साथ आ रहे थे कि वो सोच ही नहीं पा रहा था, है ना. बाय अनपावरिंग द ही स्टार्टेड आउट टू लुक द ब्रदर्स. इतने सारे एक साथ आने वाले थॉट को वो सोच ही नहीं पाया कि वो खुद ही चला गया ढूंढने के लिए. द पुल. युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन his brother had taken through tracks with wild boar abusing and spotted deer, huge forest birds. वो भी उसी मार्ग से गया जिस मार्ग के उससे भाई वगैरह गए थे. Presently he came upon a beautiful green meadow, guiding a pool, pellucid water, nectar to his eyes. मतलब एक वो बहुत ही सुंदर जगह पे आ चुका था, वहाँ पे वो पूल भी था. ठीक है. But when he saw his brothers lying like a scared flagpoles, then pell-mell after festival, unable to restrain his grief, the lifted his voice and wept, he stroked the faces off. वो जैसे ही आया वो एकदम सरप्राइज हो गया कि मेरे सारे के सारे भाई यहाँ पे पड़े हुए हैं लाइक अ फ्लैग पोल्स. मतलब उसकी खुशी 1 मिनट में ही दुख के रीज़न बन चुका था. ही इज लिफ्टेड हिज वॉइस एंड स्ट्रोक फेसेस ऑफ. उसने एक एक का चेहरा उठा के भी देखा. कौन है इतना पावरफुल? मतलब क्या यही हमारा अंत था? वो ऐसा बोलते हैं, क्या यही हमारा अंत था? क्या तुम सब मुझसे छीन ले गए हो? इवन द गॉड हैज़ नॉट डन दिस मोर फॉर्चून. ये एक भगवान तक ऐसा कुछ गलत नहीं कर सकता. वो बहुत ही दुखी था, सैडली था, और सोच रहा था कि इतना पावरफुल कौन है जो मेरे इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल भाइयों को मार सकता है. Brokenly he reflected, surely my heart must be of steel, not to break after seeing Nakula and Sahadeva dead. For what purpose should I continue live in this world? मतलब उसका हार्ट पक्का स्टील का बना होगा, इवन सीइंग नकुला एंड सहदेवा डेड. मतलब स्टील का बना है. नकुला और सहदेवा को देख के उसको बहुत बुरा लग रहा था. उसने सोचा कि अब क्या ही फ़ायदा मेरे इस ज़िंदगी में ज़िंदा रहने का. Now, if you want to know what happens further to story, I know there my explanation might be like something atking, like something coughing, but the explanation is totally right. You can see different videos also. Don't see my see. Okay, and I will further continue this chapter if you want. Just you comment me like further, and I will make the separate video again on the remaining chapter. The story is very interesting. At the next we will see, will the Yudhishthira will be able to save his brother's life, or what happened? Do he will die due to the seeing that his all brothers are lying dead? What happens next? What, how will he save, or why will he not save? Everything would be clear in next video. So if like, share and subscribe, and tell for the next video.